Good morning, children. Today's topic is atmospheric pressure. I already taught in previous class thrust, pressure, pressure due to solid, pressure in liquid, Pascal's law, etc. So today I want to explain about the atmospheric pressure. You are knowing that thrust is a normal acting force and pressure is a force per unit area. And force per unit area is defined as pressure, and then I just take by numerical I explained that the pressure by a girl of 35 kg if bearing a pencil hill and an elephant which have thick leg, then 7 ton or mass is or wazn weight is the 7 ton, then the pressure exerted by the elephant is lesser in comparison of the girl. So if area is small, then pressure is more by the same weight. Okay, यानी कि inversely proportional to the area. Pressure is inversely proportional to the area and directly proportional to the weight or force. Now children, atmospheric pressure. Atmospheric pressure, already I define about the liquid pressure, density, liquid or fluid pressure depends on density, depth and gravitational acceleration. In atmosphere, air column is present here and of different height, and density of the atmosphere is decreases as this goes up and a higher altitude. So the pressure decreases with very is a big amount, like because depth is air length of the air column decreases, means depth decreases, density decreases because the density of air is rarer in upper layer, and gravitational acceleration, we also study that gravitational acceleration decreases. So its value decreases and pressure decreases as we go up is very high amount because all three factors decreases. तो हम लोगों को पहले एटमॉस्फेयर में जो हमारा एयर कॉलम है और वो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है हमारे ऊपर, दैट प्रेशर is always on our us, but we are not feeling because our under pressure and blood pressure and atmospheric pressure is always balanced. If any case, if unbalanced, that like if our blood pressure is going down, then atmospheric pressure, due to high atmospheric pressure, we feel nausea and maybe faint or sometime severe problem like that way. And if our blood pressure is more in comparison of atmospheric pressure, then may cause nose bleeding, ear bleeding, mouth bleeding, this. Okay, so pressure by the atmosphere is known as atmospheric pressure. But how we can measure? We can measure by the barometer. It is compared by the pressure exerted by mercury column of 76 centimeter, length at 0 degree centigrade and 45 degree latitude at the sea level. लैटिट्यूड ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़ चुके हो, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड. तो 45 डिग्री लैटिट्यूड पे 0 डिग्री सेल्सियस पे 76 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मरकरी, किसी भी ट्यूब में जो 76 सेंटीमीटर लेंथ में मरकरी भरा हुआ है, वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहलाता है. It is equal to the weight of 76 centimeter column of mercury of cross sectional area 1 centimeter square. 1 centimeter square cross sectional area पर जो प्रेशर 76 centimeter exert करेगा, that is called 1 atmospheric pressure or atmospheric pressure of the atmosphere. Generally इट्स यूनिट पेपर वगैरह में देखते होगे तुम लोग, जनरली इट इज यूज्ड इन बार. बार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो किया रहता है. ये बार है क्या? इट इज यूनिट.
जनरल यूनिट ऑफ द प्रेशर। ऐसे हमारा एसआई यूनिट पास्कल होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, बट बार इज द जनरल यूनिट, और 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल या 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 atmospheric pressure is equal to 1 bar, or that is equal to 10 to the power 5 पास्कल। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 5 पास्कल प्रेशर ऑलवेज एक्सर्ट होता है। सोच लो कि हमारे ऊपर इतना पास्कल का प्रेशर कम से कम डेली पड़ रहा है, हर समय पड़ रहा है, और हम लोग को अब चूंकि पता नहीं चलता है इतना प्रेशर, क्योंकि हमारा अंदर का ब्लड प्रेशर और ये दोनों बैलेंस है। जिस दिन अनबैलेंस होता है उस दिन हम लोग को बेचैनी लगने लगती है, हो सकता है हम फेंट कर जाए, हो सकता है पसीना बहुत आने लगे, हो सकता है नोज ब्लीडिंग हो जाए। ठीक है, अब है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01 बार, and 1.01 bar equal into 10 to the power 5 pascals, or that is equal to 760 torr। अब torr क्या है? Torr is also unit of प्रेशर। याद रखो, टॉर, बार, पास्कल, ये सब आपका प्रेशर का यूनिट है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, और 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, एंड 1 बार equal to 1 atmospheric pressure equal to 1.01 bar, that is equal to 760 torr। अब कहोगे ये 760 torr कैसे? तुम लोगों को 1 मिलीमीटर समझ रहे हो, एक स्केल का जो लेंथ होता है, तो छोटे छोटे लाइन जो होते हैं सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बीच में जो 10 डिवीजन रहता है, तो दो छोटे डिवीजन के बीच में जो लाइन रहता है, उस लाइन को हम लोग वो दोनों लाइन के बीच के जो लेंथ होता है, उतने लेंथ में जितना मरकरी भरा हुआ है, दैट इज इक्वल टू उसका जो मरकरी कॉलम है जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज इक्वल टू 1 टॉर। और 1 टॉर ऐसे भी समझो ना, ये 760 टॉर क्यों हुआ? 76 सेंटीमीटर में तुम्हारा अभी बताया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कंपेयर करते हैं 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम से, और ये 0 तुम जानते हो कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 760 सेंटीमीटर बराबर 1 टॉर, यानी मिलीमीटर प्रेशर में ये दिया हुआ है। अब कहोगे कि मैम ये प्रेशर ऐसा क्यों है? असल में HDG यानी कि हाइट इंटू डेप्थ एंड टू हाइट एंड टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हाइट ऑफ द कॉलम हमारा 76 सेंटीमीटर हाइट है जो मरकरी का कॉलम है, और हाइट है यानी कि 0.76 मीटर है, और आपका तुम जानते हो डेंसिटी 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होता है मरकरी का, तो ये, और इनटू आपका जी ग्रेविटेशनल 9.8 यानी कि 10, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1 आपका पास्कल आ जाएगा। अब जितना वैल्यू आएगा वो पास्कल के बराबर होगा, यानी कि इतना प्रेशर हमारे शरीर पे पड़ रहा है उस समय हमारे उस टेम्परेचर पे। तो ये है। अब ये होता कैसा है, आप लोग के लैब में ये अवेलेबल है। होता क्या है कि इसको एक मरकरी का ट्यूब रहता है जो कि ग्रेजुएटेड रहता है, और एक ग्लास का ट्यूब होता है जो कि ग्रेजुएटेड होता है, उसमें मरकरी भरा रहता है। एक मरकरी का बाउल होता है, बॉल में जब मरकरी को ट्यूब को पलटा जाता है तो ऑटोमेटिकली वो 76 सेंटीमीटर पर रुक जाता है, क्योंकि इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो बैलेंस होता है। तो इस तरह से 76 सेंटीमीटर प्रेशर के बराबर हमारा एयर कॉलम का प्रेशर होता है। हम लोग मरकरी ही क्यों रहते हैं, ये तुम लोग तो एक रीजन तो तुम जानते हो कि मरकरी स्टिक नहीं करता है ग्लास रॉड में। दूसरा क्या होता है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो हमारा 76 सेंटीमीटर यानी कि हम 1 मीटर का एक रॉड लेंगे तो हमको पता चल जाएगा बैरोमीटर में कि 76 सेंटीमीटर है हाइट इसकी। अगर हम पानी लेते तो एक तो वो स्टिक करता, दूसरा क्या है, पानी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स लेस होता है, यानी कि हमको हाइट जो लेना पड़ेगा वो 1 मीटर यानी कि 13.6 मीटर का, और हर घर का हाइट करीब करीब एक रूम का हाइट 2 मीटर से कम ही होता है। तो 2 मीटर से कम हाइट वाला जो ये आपका हाइट होता है 2 मीटर से भी कम हाइट होता है। तो यानी कि 6 तल्ला
6 फ्लोर, तो 6 फ्लोर में 7 फ्लोर के ऊपर जाकर तुमको देखना पड़ेगा, तब तक जी का वैल्यू भी घट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसीलिए मरकरी रखते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है और ये स्टिक नहीं करता है, तो मरकरी हमको कम ही हाइट पे हम लोग को इस सी लेवल पे ही हम लोग को अच्छा खासा अच्छे से प्रेशर दिखा देता है। ठीक है, अब है क्या कि हम अब है वन टॉर तो तुमको बता दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड के साथ प्रेशर डिक्रीज करता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू कुक द फूड एट द माउंटेन। माउंटेन पे हमारा खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो कम टेम्परेचर पर ही बॉईल करने लगता है और काफी देर में वो पकता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है। तुम जानते हो ना, प्रेशर कुकर इसीलिए प्रेशर कुकर क्या करता है कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है और कहने का मतलब और ये आपका जल्दी खाना पक जाता है प्रेशर अधिक होने के कारण। उसी तरह से फाउंटेन पेन, यहाँ पे के बीच में गैप होना चाहिए। फाउंटेन पेन जो है वो पैसेंजर का लीक करता है जब एरोप्लेन हाइट पे जाता है। उसका रीजन यही है कि वो प्रेशर जो है बाहर का प्रेशर कम हो जाता है और एरोप्लेन में आपका इंक लीक करने लगता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर रीडिंग वी कैन वेदर फोरकास्ट। ओके, तो सडन फॉल इन रीडिंग इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म, जैसे ही एक बैग तेजी से गिरेगा तो समझ लो कि तूफान आने वाला है। अगर स्लो फॉल हो रहा है रीडिंग में तो इंडिकेशन है कि बारिश होगी, और स्लो राइज इन रीडिंग देन क्लियर स्काई होगा। आज हम लोग इतना ही, अगले दिन हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, है ना। हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस डे। गुड